Welcome you back in my educational blog where I used to teach micro and macroeconomic concepts for all the grades only for to help the students who are facing problem by scrolling the different books. So let's start our new topic, that is a balance of payment. So balance of payment simply we can say is that to make an equilibrium between the export and an import. For example, India is having in core competencies in agricultural products and services, and USA, China, and Japan is having core competencies in an electronic items. So let's check it out, the balance of payment of an India. The balance of payment of an India will be in equilibrium situation when India's import will just equal to the export. For example, if India is importing electronic items of the 5 crores and on the other hand India is exporting the 5 crore goods and services to the sister concerned countries, then the India's balance of payment will be in an equilibrium stage. So the balance of payment when the one country's import is just equal to export. So what will be happen if India's import is more and export is less, and if India's export is more and import is less? Let's study. For example, if India's import is greater than the export, then what will be happen? The India will suffer from the deficit situation, because the India will suffer from the deficit situation because India will import from the outsiders countries and India will pay the money to the outside countries in terms of rupees. So India will suffering from the scarcity of money, and scarcity of money will tend to decrease the inflation, increase deflation, result recession will be in an economy. So India will suffer from the deficit situation. On the contrary, if India's export is more and import is less, then what will be happen? Because India will suffer from the surplus situation, India will get pounds, dirhams, yens, ringgits in terms of foreign currency from the outsiders countries, and India's inflation will be high, supply of money will be high, and India will be in a prosperity situation. So these are the simple tricks which I used to share with you. So let's stay on tune with Dr. Nidhi's educational blog of micro and macro economics. Now we will be study about the components of the balance of payment. The components of balance of payment is being bifurcated into three major parts: current account, capital account, and financial account. So let's study what is in current account. Current account tracks the flow of goods and services, income and current transfers between a country and to the rest of the world. For example, India exporting some goods and services to the sister concerned countries, and on the other hand, India is importing from the other countries. So the goods and services which is transferring from one country to the another country, so obviously the transaction will be conducted in a form of a money. So when we will be maintain this record, then the term is known as an current account. We will be study about the components of the current account. The first is in trade balance. Trade balance में वो होता है, for example, if I'm exporting 5 crore items from India to USA, and if I am importing from USA to India the amount of 20 crores, so I can say that my trade balance will be in deficit situation because my import is high and export is less. If I talk about the service balance, for example, India is also providing services to the foreign countries, and foreign countries also providing services to the Indian countries. So सर्विस बैलेंस में हम लोग उस बैलेंस को चेकआउट करने की कोशिश करते हैं जो कि ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस से कनेक्टेड होता है. इनकम बैलेंस में
फॉर एग्जाम्पल द इन्वेस्टमेंट इनकम एंड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ को हम लोग जस्टिफिकेशन करते हैं। फॉरेन कंट्रीज़ के बंदे हमारे कंट्री में कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं और उनसे कितना डिविडेंड मिलता है, और इंडिया के इंडिविजुअल्स बाहर के कंट्री में कितना इन्वेस्ट करते हैं और उन्हें कितना रिटर्न मिलता है। उन दोनों का जो बैलेंस होता है वह आता है हमारे इनकम बैलेंस में। करंट ट्रांसफर्स में आता है हमारा यूनिलेटरल ट्रांसफर्स लाइक फॉरेन एड एंड रेमिटेंसीज, और इसी तरीके से हमारा करंट अकाउंट फिनिश होता है। लेट्स स्टडी अबाउट द न्यू अकाउंट दैट इज द कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में आते हैं हमारे नॉन फाइनेंशियल एसेट्स लाइक पेटेंट्स, कॉपीराइट्स एंड डेब्ट फॉरगिवनेस। जब एक कंट्री को दूसरी कंट्री से पेटेंट्स मिलते हैं, कॉपीराइट्स मिलते हैं, और यदि एक कंट्री ने दूसरी कंट्री से पैसा उधार लिया हुआ है तो उसके बेसिस पे यदि उसे कोई डेब्ट फॉरगिवनेस मिलती है तो वह भी हमारे कैपिटल अकाउंट में आती है। नाउ वी विल बी स्टडी अबाउट द फाइनेंशियल अकाउंट। सो इन फाइनेंशियल अकाउंट वी स्टडी अबाउट द transactions in financial assets like FDI, portfolio investments and other investments. फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि एक कंट्री दूसरे कंट्री में कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करता है, या यदि कोई पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करता है, या कोई अदर इन्वेस्टमेंट्स करता है, या यदि बाहर का कंट्री का कोई एंटरप्रेन्योर हमारी कंट्री में कोई एफडीआई करता है, कोई पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करता है, या कोई अदर इन्वेस्टमेंट्स करता है, तो उसका जो हम लोग रिकॉर्ड ट्रेस आउट करते हैं उसे हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंट। सो नाउ लेट्स वी स्टडी अबाउट द डिसइक्विलिब्रियम अबाउट द बैलेंस ऑफ पेमेंट, कि आखिर ऐसे कौन से रीजंस हैं जिसके कारण हमारा जो बीओपी है वो डिसइक्विलिब्रियम में जाता है। तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है इकोनॉमिक फैक्टर्स, सेकंड आता है पॉलिटिकल फैक्टर्स, थर्ड आता है social factors. So let's study about the economic factors. Economic factors में imbalance between the export and an import. For example, if one country's export is more and import is less, और import is more, export is less, तो इन दोनों का जो mismanagement होता है उसे हम लोग कहते हैं imbalance between the export and इम्पोर्ट। तो जिसके कारण जो डिसइक्विलिब्रियम आता है उसे हम व्हाट इज द बेसिक रीजंस। सेकंड आता है लार्ज स्केल ऑफ डेवलपमेंट। लार्ज स्केल ऑफ डेवलपमेंट होगा तो ओबियसली एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो इम्पोर्ट्स कम होंगे, तो ओबियसली एक्सपोर्ट विल बी हाई एंड इम्पोर्ट विल बी लेस, देन डिसइक्विलिब्रियम विल बी इंक्रीज। थर्ड आता है हमारा हाई डोमेस्टिक प्राइसेस। फॉर एग्जाम्पल, यदि इंडिया में किसी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की प्राइसेस हाई है तो बाहर की कंट्रीज़ में हम लोग इसे परचेज करेंगे ताकि हमारे होम कंट्री में हमें हाई प्राइसेस नहीं देने को मिले। नेक्स्ट आता है साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस। इसी तरीके से हम लोग स्टडी करते हैं अबाउट द पॉलिटिकल फैक्टर्स। समटाइम्स गवर्नमेंट चेंजेस, लीगल कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस, ओके, एंड पॉलिटिकल लीडर्स चेंजेस, तो उनके चेंजेस होने के कारण हमारी इकोनॉमी में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और डिस्टर्बेंसेस आता है, जिसके कारण भी हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में डिसइक्विलिब्रियम पाया जाता है। थर्ड आता है हमारा सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स में आ जाता है चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड पॉपुलेशन ग्रोथ, जिसके कारण भी भुगतान संतुलन अनिश्चितता आती है। नाउ वी विल बी स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। We study about the types of disequilibrium. So there are the 4 types of the BOP disequilibrium. The first is the cyclical fluctuations. The second is the structural disequilibrium, and the third is the short run disequilibrium. So तो cyclical fluctuations जो होते हैं वो cyclical changes in income, employment, output और price से related होते हैं, तो उसके कारण भी हमारी इकोनॉमी में BOP डिसइक्वल फॉर्म में
आता है। स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम होता है कि सम सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी एट होम और अब्रॉड विच मे ऑल्टर द डिमांड और सप्लाई रिलेशंस ऑफ एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट बोथ। मीन्स जब हमारी इकोनॉमी के किस सेक्टर में स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं तो उसके कारण जो हमारी इकोनॉमी में बीओपी में जो डिसइक्विलिब्रियम आता है उसे हम लोग स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम कहते हैं। एक आता है शॉर्ट रन डिसइक्विलिब्रियम व्हेन अ कंट्री बोरो और लेंड इंटरनेशनली कॉल्ड शॉर्ट रन डिसइक्विलिब्रियम। एक आता है लॉन्ग रन डिसइक्विलिब्रियम। इट इज कॉज्ड बाय द चेंजेस लाइक कैपिटल फॉर्मेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ, टेरिटोरियल एक्सपेंशन एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो इसी के साथ हमारे टाइप्स ऑफ डिसइक्विलिब्रियम खत्म होते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू मेक यू क्लियर अबाउट हाउ टू करेक्ट द बीओपी डिसइक्विलिब्रियम। We study about how to correct the BOP. The first factor is like the expenditure reducing policies, जिसमें हम लोग मदद लेते हैं monetary and fiscal measures की। इसमें हम लोग we will reduce the monetary policy, जिसके कारण rate of interest market में बढ़ेगा। rate of interest के बढ़ने से savings प्रमोट होगी, purchasing power घटेगी, market में demand कम होगी और if purchasing power will be low then the imports will be low, जिसके कारण हाई इंपोर्ट पे कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी। एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसीज में हम लोग हमारी डोमेस्टिक करेंसी को रिड्यूस कर सकते हैं। डोमेस्टिक करेंसी को रिड्यूस करने के कारण जो हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो हो जाएंगे चीपर और हमारे इंपोर्ट्स हो जाएंगे कॉस्टलियर, और इंपोर्ट्स यदि कॉस्टलियर होंगे तो नोबडी वुड लाइक टू डू द इंपोर्ट। नेक्स्ट आता है टैरिफ ट्रेड पॉलिसी मेजर्स, जिसमें हम लोग हाई टैरिफ्स और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन लगा के इंपोर्ट्स को कम कर सकते हैं और बीओपी को इक्वल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डायरेक्ट कंट्रोल्स, जिसमें हम एक्सचेंज कंट्रोल, capital control, export promotion, providing subsidy to the exports, reducing export taxes, import substitution, tourism development और foreign loan and investment के जरिए हमारी इकोनॉमी में बैलेंस ऑफ पेमेंट के डिसइक्विलिब्रियम को फिनिश कर सकते हैं। तो इसी के साथ लेटेस्ट अपडेट्स, क्वालिटेटिव नोट्स, ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस के साथ साथ यदि आप कोई जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल पर विजिट्स करें, और शॉर्ट ट्यूटोरियल्स ओनली फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आई यूज टू शेयर टू माई इंस्टा पेज, एंड एनी हेल्प यू हैव इन नीड आउट you just contact to me. Thank you for my educational blog, and let's prepare for my next macroeconomic blog will come soon. Thank you.